پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ شخص اپنے رب پر پوری طرح یقین کر چکا ہے۔ اس نے ہار مان لی ہے اور اب صرف اپنے اللہ کو پکار رہا ہے۔ یا رب، میں کہاں آ پہنچا، میرے عالیشان محل چلے گئے۔ اے میرے مولا، میں نے تو اپنی پوری جوانی، اپنی ساری راحت، اپنا چین، سب کچھ انہی کو بنانے میں خرچ کر دیا تھا۔ کیا اب میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ کیا یہاں سر رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بھی میری نہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہیں اور جب روح کی آنکھ عالم برزخ میں کھلتی ہے تو سب سے پہلا درشیہ کیسا ہوتا ہوگا؟ عالم برزخ، وہ دنیا جہاں موت کے بعد روح قیامت تک ٹھہرتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو دنیا میں دولت مند تھا، آج ایک ایسے کھلے میدان میں کھڑا ہے جہاں چاروں طرف سناٹا ہے، نہ چھاؤں ہے، نہ درخت، نہ کوئی عمارت۔ دوستوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اور آپ کی بھی وہاں کی زمین یوں ہی سونی پڑی ہو؟ آج ہم اس نعمت کی حقیقت سمجھیں گے جو 1400 سال پہلے آسمانوں کے پار سے خاص ہمارے لیے بھیجی گئی تاکہ ہماری جنت خالی نہ رہ جائے۔ ایک ایسی رحمت جو دلوں کو روشن کر دے اور ہر قدم کو مانی دے۔ یہ داستان ہے تیسرے کلمے کی۔ تھرڈ کلمہ، جنت کا خزانہ۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اس کلمے کی جڑیں دھرتی میں نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقدس پیڑ جہاں سے آگے کائنات کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہے معراج کی مقدس رات کا، جب ہمارے نبی پاک حضرت جبریل امین کے ساتھ ایک کے بعد ایک ساتوں آسمانوں کا سفر طے کر رہے تھے تو اس دوران کیا ہوا؟ کون ہے؟ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد ہیں۔ ہر آسمان پر نبیوں نے نبی پاک کا شاندار استقبال کیا، لیکن 7ویں آسمان پر ایک خاص ملاقات نبی پاک کا انتظار کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، نظر اٹھا کر دیکھیے، یہ آپ کے ضد امزد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تشریف لے جائیے، ان سے ملاقات کیجیے۔ اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب دو عظیم ہستیاں آمنے سامنے تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ادب اور محبت سے مخاطب کیا اور سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی شفقت نور بن کر پھیل گئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، مرحبا، آؤ میرے نیک نبی۔ جب یہ مقدس ملاقات مکمل ہوئی اور جیسے ہی نبی پاک نے آگے کے سفر کے لیے رخ موڑا، ٹھیک اسی پل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بہت خاص پیغام دینے کے لیے پکارا، اے محمد ذرا رکیے۔ جی حکم کیجیے، آپ واپس دنیا میں تشریف لے جا رہے ہیں، میری ایک امانت لیتے جائیے، اپنی امت سے میرا یہ سلام کہیے گا۔ ذرا غور کیجیے، ہزاروں سال پہلے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی کی فکر تھی تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میں اور آپ تھے، یعنی ان کی امت۔ سبحان اللہ، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے ذریعے ہمیں سلام بھیج رہا ہے۔ لیکن بات صرف سلام تک نہیں تھی، انہوں نے جنت کا ایک بہت بڑا راز کھولا۔ انہیں میرا یہ پیغام دیجیے گا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہاں کے میدان چٹیل ہیں، بالکل خالی، نہ وہاں کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی باغیچہ، تو وہاں باغیچے کیسے لگیں گے؟ ان سے کہیے گا
उन्हें आबाद करने वाले बीज ये अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब तुम्हारा कोई उम्मती से पढ़ता है तो उसी पल यहाँ उसके नाम का एक दरखत लगा दिया जाता है, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं, ये जिक्र है एक अजीम नबी का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो 4 लफ्ज सिखाए वो मामूली अल्फाज नहीं थे। आइए इस कलमे को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या राज छुपा है। पहला लफ्ज है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इसका मतलब है कि अल्लाह हर नक्स से पाक है। लेकिन किस चीज से पाक? जब एक बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो वो गवाही देता है, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, ये दुनिया ऐबों से भरी है, लोग कमियों से भरे हैं, लेकिन तेरी जात हर कमी, हर गलती, हर नींद, हर भूख और हर ऐब से पाक है। ये लफ्ज इंसान के दिल से बदगुमानी की गंदगी को धो देता है, सुभान अल्लाह। दूसरा लफ्ज है वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें और तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए। और कीजिए, जब इंसान को कोई कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर मैं आ जाता है कि ये मैंने किया, मैंने मेहनत की थी। लेकिन जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो अपनी मैं को कुचल देता है और सारा क्रेडिट अपने रब को दे देता है। ये लफ्ज इंसान को आजिज़ी सिखाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा हिस्सा है वला इल्हा इल्लल्लाह। ला इल्हा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ना कोई पत्थर, ना कोई इंसान, ना कोई दौलत, ना कोई ताकत, सिर्फ एक अल्लाह। ये लफ्ज इंसान को दुनिया की गुलामी से आजाद करता है। और चौथा हिस्सा है वल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आप मुसीबत में हो, कर्ज में डूबे हो तो या बीमारी ने घेर लिया हो तो अपनी इस बड़ी मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर कहिए अल्लाह अकबर, यानी ए मुसीबत तो बड़ी होगी मगर मेरा अल्लाह तुझसे बहुत बड़ा है, सुभान अल्लाह। मतलब तो हम समझ गए, लेकिन असल मसला ये है कि हम उसे दिल से महसूस नहीं कर पाते। आइए देखते हैं कि जब ये लफ्ज दिल में उतरते हैं तो क्या होता है। हजरत, मैंने मतलब भी जान लिया, तस्बीह भी पढ़ ली, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं होता, रूह प्यासी लगती है, सुकून नहीं मिलता। क्या मेरे पढ़ने में कोई कमी है या मेरे दिल में अभी रास्ता बाकी है? रहनुमाई चाहिए। बेटा, तुम लफ्जों को सिर्फ जुबान से अदा कर रहे हो, उन्हें अपनी रूह का हिस्सा नहीं बना रहे। तो मैं क्या करूं? अगली बार जब सुभान अल्लाह कहो तो तसव्वुर करना कि तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं। गन्नत और जन्नत के उस खाली मैदान में तुम्हारे नाम का एक सोने का दरख्त लग रहा है, और जब कहो अल्हम्दुलिल्लाह तो उन नेमतों को याद करना जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें, और महसूस करना कि तुम उसके कितने एहसानमंद हो। याद रखिए दोस्तों, बगैर एहसास के पढ़ी गई तस्बीह सिर्फ लफ्ज है, लेकिन एहसास के साथ पढ़ा गया एक लफ्ज पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। यहाँ तक तो हमने जन्नत के पौधों की बात की, लेकिन तीसरे कलमे का जो आखिरी हिस्सा है उसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के खजानों में से एक खजाना कहा है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता, तब ये लफ्ज तो बर्बाद हो गया है। तेरा कर्ज कभी नहीं उतरेगा तो कभी खुश नहीं रह पाएगा, तेरा कोई मददगार नहीं। जब इंसान की अपनी ताकत और अपनी हिम्मत जवाब दे जाती है, तब वो अल्लाह की कुव्वत का सहारा लेता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी जानते हैं इसका मतलब क्या है? जब हम में न गुनाह से बचने की ताकत हो, न नेकी करने की हिम्मत, जब सब कुछ मुश्किल लगे, मगर अल्लाह की तौफीक से ये सब मुमकिन होता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पीछे हट जाओ। ये शख्स अपने रब पर पूरी तरह यकीन कर चुका है। इसने हार मान ली है और अब सिर्फ अपने अल्लाह को पुकार रहा है। सुभान अल्लाह। हदीस में आता है ला हौला वला कुव्वता। 99 बीमारियों का इलाज है, 99, और उनमें सबसे छोटी बीमारी रंजो गम है, यानी डिप्रेशन और टेंशन। जब दिल टूटता है तो ये लफ्ज दिल को सहारा देते हैं, रूह को शिफा मिलती है। ये वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताला खोल देती है। ऐ अल्लाह के बंदे, नजर उठाकर देख ये क्या है, ये बहार कहाँ से आ गई, ये बाग किसके हैं? ये सब उसी का है जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। ये
तेरी जागीर है। जब तू दुनिया में मायूस था और तूने पढ़ा सुभान अल्लाह तो यहाँ एक दरख्त लग गया। जब तूने शुक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ नेमतें बढ़ गईं। ये सब तेरे ही लफ्जों का अजर है। तेरे रब ने तेरे उन अल्फाज को जो तूने चलते फिरते उठते बैठते कहे थे उन्हें जन्नत के बागों में बदल दिया है। ये सब उसकी रहमत है, उसका फजल है जिसने मामूली लफ्जों को हमेशा की नेमत बना दिया। अल्लाह। तो दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम हम तक पहुंच गया, उनका पैगाम आ गया। अब फैसला हमारा है, क्या हम उस जमीन को बंजर छोड़ देंगे या उसे जिक्र से जिंदा करेंगे। क्या आज इसी वक्त अपनी जन्नत में पहला दरख्त लगाएंगे। मेरे साथ पढ़िए और महसूस कीजिए कि 7वें आसमान के ऊपर आपके नाम का एक दरख्त लग रहा है, हर लफ्ज के साथ, हर सांस के साथ। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुभान अल्लाह। चलो अब सब मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारी जुबानों को अपने जिक्र से तर कर दे। या अल्लाह, जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी जन्नत वीरान ना हो, बल्कि वो तेरे जिक्र के बागों से महक रही हो। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो ला हौला के जरिए अपनी तमाम परेशानियां तेरे हवाले कर देते हैं। या रब, हमें तवक्कल अता फरमा और दिलों को मजबूत कर दे। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए। ऐसी ही कुरान की हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल दस्ताने इस्लाम को सब्सक्राइब करें।